Hello student, the third problem from the practice set 1.5. The problem is the sum of father's age and twice the age of his son is 70. मतलब father का age और son के twice age, the twice of the son's age, उसका son कितना हो रहा है 70 हो रहा है. Then if we double the age of the father, अगर father के age को क्या किया डबल किया एंड ऐड और ऐड किया किसमें एडिड टू द एज ऑफ हिज सन. ओके सन के एज में ऐड किया तो सम क्या हो रही है सम इज 95. व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट वी नीड टू फाइंड आउट देयर प्रेजेंट एजेस. ओके तो हमें क्या फाइंड आउट करना है वी नीड टू फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड डैड फादर. ओके सो व्हाट वी विल टेक so what we need to calculate that we will take as variable let the age of son. Okay age of son क्या लेंगे हम let the age of son is what I will take as x years and the age of father. Okay the age of father is what it will be y years. Okay फिर बाद में क्या बोला है the sum of father's age. Okay so sum करनी है मुझे किसकी father's age. father's का age क्या है it is y and twice the age of his son. twice the age of his son. twice क्या होगा it is son का age है x so it is twice. Okay so what is twice it is 2y और क्या है उसका sum है so y plus सम ऑफ फादर एज. फादर का है y years और सन का क्या है ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन मतलब 2 टाइम x. उसका क्या कर रहे हैं हम सम कर रहे हैं तो उसका सम क्या आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी 70. ओके सो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन रहेगा. और फिर बाद में देखो बाद में क्या बोला है इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर मतलब डबल यानी क्या होगा डबल द एज ऑफ फादर. फादर का क्या है y उसका डबल करना है सो क्या हो जाएगा डबल मतलब it will comes out to be 2y if we double the age of the father and add it to the age of his son. और add किया किसमें add it to the age of son. son का क्या है x 2y plus x वो कितना comes out to be उसका क्या बोल रहा है the sum is 95. sum आ रहा है इसका दोनों का sum कितना आ रहा है 95. so find their present ages मतलब हमें x और y कैलकुलेट करना है. easy problem है. this problem is asked for 3 marks. okay तो जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम मतलब जो जिसमें बहुत कुछ करना पड़ रहा है जैसे वो नॉन लीनियर इक्वेशन आया फिर नॉन लीनियर को लीनियर में कन्वर्ट करके सॉल्व किया तो दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम विल आस्क फॉर 4 मार्क्स. और जो सिंपल वाले प्रॉब्लम है दैट विल बी आस्क फॉर 3 मार्क्स. ओके सो हम अभी एक एक कंडीशन लिखते हैं. लेट द एज ऑफ सन इज x ईयर्स हमने लिखा. ओके सो नाउ विल राइट फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन. ओके सो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन तो एक्चुअली हमने ऑलरेडी कंडीशन फर्स्ट फाइंड आउट किए है. क्या है हमारी फर्स्ट कंडीशन सम है फादर्स एज फादर y and twice the age of son that is 2x who comes out to be 70. so I will write y plus 2x is equal to 70. y plus 2x is equal to 70. okay and then what second condition क्या है अपनी second condition में क्या है double the age of the father यानी y यानी 2y okay plus age of son यानी 2y plus x comes up to be 95. okay 2y plus x is equal to तो अभी इसको क्या करूंगी I will multiply this by 2. okay and I will call this as equation 1 and I will call this as equation number 2. okay so multiplying equation 1 by 2 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं by 2. okay so this is multiplied with 2 so ये बन जाएगा I will write in the x y now. okay so first is 4x plus 2y is equal to क्या रहा है this is 140. I will call this as 3. फिर बाद में क्या करूंगी this is now 2y so what I will write I will do 3 minus 2. okay 3 minus 2 तो this ये 3 है और this is 2. okay so first of all I write x then x plus 2y is equal to what 95. अभी क्या करूंगी डायरेक्ट लिखा है ना सब्ट्रैक्ट करना है so I will write here minus then here minus here minus here minus. okay so 4x minus x is come out to be 3x. okay ये तो कैंसिल हो जाएगा then it is what 10 minus 5 is 5. okay and then 14 minus 10 is what it comes out to be 4. so 3x is equal to 45 तो x is equal to what therefore x is equal to क्या हो जाएगा 45 by 3. what is the answer 15 किसका एज है it is the age of son right ना. ठीक है 15 हो सकता है 15 कुछ भी हो सकता है but it should not be negative right ना. अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो समझना है कि मुझे कुछ रॉन्ग हुआ है अपना राइट ना बिकॉज एज कैन नॉट बी नेगेटिव. ओके सो व्हाट 15 आया है. और फिर बाद में क्या फाइंड आउट करना है फादर्स एज. तो आई विल पुट इन इक्वेशन नंबर 1. ओके पुट x is equal to 15 in equation 1
इन इक्वेशन 1, सो 1 क्या रहेगा, x 2x plus y is equal to 70 है. So I need to find out y. So y will be what, 70 minus 2 into x. Okay, 2x क्या है 15 है, so I will write here 50. So ये हो जाएगा 70 minus 30, 70 minus 30 which comes out to be 40. Okay, तो 40 किसका एज है, फादर का. Okay, therefore फादर्स एज, ओके यहाँ पे लास्ट में लिखो फादर्स एज इज क्या है, इट इज 40 years. ओके, एंड देन सन्स एज, सन का कितना एज है, सन्स एज इज व्हाट, इट इज 15 years, राइट ना. और हम बाद में चेक भी करना है कि फादर का ज्यादा होना चाहिए. ओके राइट. सो आपको क्रॉस चेक करना है तो आप कंडीशन से, ये कंडीशन से डाल के क्रॉस चेक भी करते हैं, राइट ना. 2x एंड व्हाट, इट विल बी 30, 30 plus 40 is what, 70. You will get the right answer. Okay, then the next problem. Okay, देखो this question is also asked for 3 marks. ये भी 3 marks के लिए पूछा है, ये भी easy question है. Okay, क्या है, the denominator of a fraction, मतलब मेरे पास क्या है, fraction है. Okay, और उसमें क्या है, suppose एक मेरा fraction लेते हैं हम, fraction. Okay, जो fraction रहेगा, तो fraction में क्या होता है, denominator होता है और numerator होता है, right. fraction में numerator and denominator लिखा. The denominator of a fraction is 4 more than. Okay, यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं. The denominator of a fraction is, जो denominator है वो क्या है, denominator क्या है of a fraction is यानी equal to लिखा, 4 more than मतलब 4 more than है तो 4 आ जाएगा, plus 4 आ जाएगा, twice is numerator, twice the numerator, मतलब denominator क्या है, 4 more than है, twice the numerator. Okay, twice किया मैंने, twice the numerator किया. ओके, डिनोमिनेटर बिकम्स 12. डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, इक्वल टू लिखेंगे क्या, नहीं, बिकम्स है, यानी ऐसा लिखा मैंने, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, 12 टाइम्स बन रहा है, यानी मल्टीप्लाइड बाय समथिंग है, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. कब, इफ दिया है, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6, मतलब जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 6 से रिड्यूस हो रहे हैं, तब क्या हो रहा है मेरा, वो क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर 12 टाइम्स. ओके ओके, जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जब 6 से रिड्यूस हो रहे हैं, रिड्यूस बाय 6, तो वो क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर इज व्हाट, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. ओके, तो इसको अभी हम अच्छे से फॉर्म में लिखेंगे. ओके, अब सबको समझ में आया कि क्या करना है हमें इसमें. सो दिस, ये क्या है, दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन है, ये मेरी सेकंड कंडीशन है. ओके, तो अभी हम लिखते हैं. ओके, सो क्या करूंगी मैं, हमें क्या करना है, फाइंड आउट फ्रैक्शन, फाइंड आउट करना है. फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन में. ओके, व्हाट विल टेक, लेट न्यूमरेटर विल बी इक्वल टू x, राइट. लेट न्यूमरेटर इज x. ओके, देन वी विल राइट डिनोमिनेटर इज व्हाट, y. ओके, देयरफॉर मेरा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन विल बी व्हाट, फ्रैक्शन विल बी x by y, राइट ना. फ्रैक्शन बन जाएगा x by y, लिखा मैंने यहाँ पे. ओके, सो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन से क्या हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी है, क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर इज व्हाट, y इज इक्वल टू 2x plus 4, राइट. डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 more than यानी 4 plus twice is numerator 2x plus 4 है, 2x plus 4. ओके, सो दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन. अभी क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम सेकंड कंडीशन. ओके, फ्रॉम सेकंड कंडीशन क्या हो रही है, सेकंड कंडीशन से, सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर अगर रिड्यूस किया मैंने 6 से, सो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखी है, सो y minus 6 इज इक्वल टू 12 टाइम्स हो रहा है, राइट ना, 12 टाइम्स x minus 6, राइट ना, न्यूमरेटर. ओके, सो ये हमारी दो कंडीशन है. सो अभी हमें इसको सॉल्व करना है. ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं. सो दिस विल बिकम y minus 6 इज इक्वल टू 12x minus 12 6 72, राइट ना. ओके, 72. ओके, सो इसको अभी सॉल्व करते हैं. सो आई विल टेक 12x हियर ओनली, 12x, इसको y को इस साइड, 12x minus y, दिस इज minus 6 plus 72. ओके, सो व्हाट विल गेट, we will get 12x, I will write here, otherwise 12x minus y is equal to क्या हो रहा है, so it is 66. okay, so I will call this as equation number 2. और इसको मैं लिख लेती हूँ, I will call this as 2x
माइनस वाई, जस्ट मिनट, ओके, इसको क्या करती हूँ मैं, आई विल राइट माइनस टू एक्स प्लस वाई, माइनस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिख रही हूँ। ओके, आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, राइट ना। ये मैंने y यहीं पे रखा, माइनस टू एक्स प्लस 4 वैसे ही आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो नाउ अभी हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। देखो यहाँ पे आई कैन डायरेक्टली ऐड दिस टू इक्वेशन, ओके, बिकॉज प्लस वाई माइनस ये है, ओके, राइट, एवरीथिंग इज करेक्ट। सो फ्रॉम 1 एंड 2, ओके, हम नहीं तो क्या करते हैं, ऐड 1 एंड 2 करते हैं, राइट ना। ऐड 1 एंड 2, अगर हमने ऐड किया 1 एंड 2, सो व्हाट विल गेट 12x माइनस y इज इक्वल टू 66 है, एंड देन दिस इज माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू क्या है अपना, दिस इज माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 है। अगर हमने ऐड किया, सो व्हाट विल गेट, दिस विल गेट कैंसल, और 12x माइनस 2x ये हो जाएगा 10x, 10x इज इक्वल टू क्या, दोनों के एडिशन हो रही है, तो दिस विल बिकम 70। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 7 आ जाएगा, राइट ना, x इज इक्वल टू 7। तो हमारा न्यूमरेटर आया। फिर अभी डिनोमिनेटर के लिए फाइंड आउट क्या कैसे करेंगे, आई विल पुट इन दिस इक्वेशन, ओके। सो फ्रॉम 1 से क्या होगा, 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज व्हाट, माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू क्या है, 4 है, ओके। सो y विल बी इक्वल टू व्हाट, इट इज 4 प्लस 2x, ओके। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू एक्स, 7 टू द 14, ओके। सो दिस विल बी 18, ओके, y इज इक्वल टू 18, ओके। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या है मेरा, फ्रैक्शन इज व्हाट, आवर फ्रैक्शन इज x बाय y, ओके। सो देयरफॉर व्हाट विल बी द थिंग, x यानी क्या है अपना 7 बाय 18, ओके। सो दिस इज द आंसर, ओके। इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लो। सो इफ यू सॉल्व लाइक दिस यू विल गेट 3 मार्क्स, okay। So the next problem is what, two types of boxes A and B are to be placed in a truck। मतलब क्या, दो टाइप के बॉक्सेस है, A और B के, मतलब A के कुछ होंगे चॉकलेट के और B के होंगे बिस्किट के, ऐसे जैसे, ओके। तो A दो टाइप के बॉक्सेस हैं मेरे पास, जस्ट लाइक आई विल राइट A और B, ओके, आर टू बी प्लेस इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रक की कैपेसिटी, मतलब ट्रक में हम कितना डाल सकते हैं, 10 टन की कैपेसिटी है ट्रक की। तो 1 टन यानी कितना होता है, 1 टन इज व्हाट, इट इज 1000 kg, ओके। सो 10 टन यानी क्या हो जाएगा, 10,000 kg, ओके, 10,000 kg हो जाएगा। देन बाद में क्या बोल रहे हैं, ओके, हम क्या सकते हैं, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, तो ए टाइप के बॉक्सेस कितने हैं, 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन द ट्रक में डाला, तो इट वेट्स, इसका वेट कितना हो रहा है, इसका वेट हो रहा है, अगर ऐसे किया मैंने तो इसका वेट हो रहा है 10 टन यानी 1000 kg वेट बन रहा है, ओके। फिर बाद में देखो, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, सो ये रहा मेरा फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, मतलब ए के नीचे क्या आ जाएगा, 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड यानी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 10 टन। सो ये जाएगा 10,000 kg, ओके। सो दैट इज फुल्ली लोडेड। फाइंड वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, ओके। दिस इज द क्वांटिटी ओनली, ओके। इसको ये क्या है, वेट है, और ये क्या है, क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी यानी जस्ट नंबर, ओके, क्वांटिटी मतलब 150 बॉक्सेस, जस्ट नंबर। इससे मुझे क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेट से, ओके। इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए के वेट से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी के वेट से। सो व्हाट, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, हमें वेट पूछा है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में वी हैव टू लेट वेट ऑफ ए बॉक्स, बॉक्स ए बॉक्स का वेट हम लेंगे x, बॉक्स बी का वेट लेंगे b, बॉक्स बी का वेट क्या है, y केजीज में ले रहे हैं, राइट ना, केजीज में ले रहे हैं, ताकि ये भी केजी में है, एवरीथिंग इज इन केजी। सो कंडीशन क्या बन जाएगी, 150x क्या बन जाएगी हमारी कंडीशन, 150 क्या होगा, 150x प्लस ये क्या होगा 100y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10,000, ओके। अदरवाइज आई विल राइट सेपरेटली, सो दैट see I am always doing like this so that you can understand the thing clearly, okay। तो ऐसे अगर बना लिया ना तो हमें डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन 150x प्लस 100y
इज इक्वल टू व्हाट 10,000। ओके, तो इसको क्या कर सकते हैं हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा इट इज 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1000, राइट ना। एक जीरो गया तो ये बन जाएगा 1000। क्या क्या हमने इसको डिवाइड बाय 10 किया। सो सेकंड कंडीशन यहाँ से, सेकंड कंडीशन क्या है 260x प्लस 40y इज इक्वल टू अगेन इट इज 10,000। ओके, अभी देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है 40 है। ओके, अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो व्हाट आई विल गेट 10y। ओके, फिर मैं डायरेक्टली क्या कर सकती हूँ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम डिवाइड बाय 4 करते हैं। इस इक्वेशन को क्या करते हैं डिवाइड बाय 4 करते हैं। अगर डिवाइड बाय 4 किया तो क्या आ जाएगा 260 डिवाइडेड बाय 4 यानी 4 6 जा 24 लेफ्ट विथ 2। ओके, 4 5 जा 20 65x प्लस 40 यानी 10y। और ये क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 लेफ्ट विथ 2 4 5 जा ओके, ये गया 4 5 जा 20 एंड लेफ्ट विथ 2 0 तो ये हो गया 2500। ओके, अभी एक है मेरे पास इक्वेशन 15x ये वाला और दूसरा ये है। तो अभी क्या कर सकते हैं डायरेक्टली इसको इफ यू राइट दिस एज इसको भी डायरेक्ट 1 and 2 बोल सकते हैं। ओके, सो अभी मैं क्या कर रही हूँ यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। सो आइदर यू कैन डू 1 - 2 और 2 - 1। मैं कर रही हूँ डायरेक्टली 1 - 2 कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ 1 - 2। तो 1 - 2 यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 - 2 किया तो क्या आ जाएगा। ये भी मैं आपको सब्ट्रैक्शन बता रही हूँ। तो यहाँ पे साइन चेंज आएगा, यहाँ पे साइन चेंज आएगा, यहाँ पे साइन चेंज आएगा। तो ये क्या होगा 15 - 65 क्या होता है 50। सो दिस विल बी -50x तो कैंसिल हो जाएगा एंड दिस व्हाट इट कम्स आउट टू बी 1500 दैट टू बी नेगेटिव साइन। ओके, तो -50x तो x इज इक्वल टू क्या होगा नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया 1500 डिवाइड बाय 50 व्हिच कम्स आउट टू बी व्हाट 0 कैंसिल हुआ 0 0 कैंसिल हुआ 3 जा 5 3 जा। ओके, सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 30, राइट ना। तो 30 क्या है 30 एक्चुअली इज व्हाट x इज इक्वल टू 30 kg। किसका वेट है ए बॉक्स का वेट, राइट ना। वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स यहाँ पे हमने किया है वेट ऑफ ए बॉक्स इज व्हाट x सो व्हिच कम्स आउट टू बी 30 kg। अभी मुझे क्या करना है बी बॉक्स का वेट फाइंड आउट करना है व्हिच इज y। तो मैं कौन सी इक्वेशन में डालूं 1 में डालती हूँ। ओके, फ्रॉम 1। ओके, अभी मैं लिख रही हूँ फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा इट इज 15x प्लस 10y इज इक्वल टू क्या हुआ 1000। सो 15x प्लस 10y सो 10y इज इक्वल टू क्या होगा इट इज 1000 माइनस 15 इंटू x कितना है मेरा 30। ओके, सो ये हो जाएगा 1000 राइट 1000 माइनस 15 3 जा 450 right 15 3 जा 45 so which comes out to be 10y आएंगे so यहाँ से 450 गया so you will get 550 right you will get 550 okay 10y is equal to 550 so therefore y is equal to what y comes out to be 0 0 cancel हो जाएगा y comes out to be 55 okay so what will write you have to write the clearly okay therefore weight of you have to write weight ही बोला है ना weight of type A box is 30 kg और यही पे लिखो B is what B box weight कितना है it is 55 kg okay so find okay so this is the problem okay this problem is asked for 4 marks okay ये 4 marks के लिए है राइट समझ में है ऐसे बना लो ताकि कंडीशन लिखने के टाइम पे इक्वेशन लिखने के टाइम पे कुछ डिफिकल्टी फील ना हो एंड यू विल राइट द क्लियरली ओके so this is from the this problem okay now we'll move to the next problem this is the most important problem and it's just little bit difficult okay देखते हैं हमें इस प्रॉब्लम में क्या करना है देखो क्या लिखा है आउट ऑफ 1900 किलोमीटर मतलब मेरे पास क्या है 1900 किलोमीटर 1900 क्या है दिस इज द डिस्टेंस ओके ये क्या 1900 ये डिस्टेंस है ओके मेरे पास क्या है डिस्टेंस है 1900 किलोमीटर है अपने पास ओके किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन ओके मतलब इसने क्या विशाल ने क्या किया अब जैसे जस्ट लाइक समझ लो आप लोग कि हमें पुणे से दिल्ली जाना है तो पुणे से मुंबई उसने किससे ट्रैवल किया बस से ट्रैवल किया और फिर मुंबई से दिल्ली वो एरोप्लेन से गया राइट ना सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन ओके तो 1900 किलोमीटर में हमारा ये डिस्टेंस है दिस इज 1900 किलोमीटर उसमें इतना डिस्टेंस छोटा सा डिस्टेंस नहीं ऐसे कुछ नहीं कुछ भी हो सकता है जैसे जस्ट लाइक मैंने तो कंडीशन ली कि पुणे एंड दिल्ली
ओके, एंड दिस इज मुंबई, तो इसीलिए मैंने ऐसे बोला, बट ओके, बट समझ लो कुछ भी हो सकता है, कितना भी डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। कि कुछ उसने बस से ट्रैवल किया और बाकी का कुछ डिस्टेंस उसने एरोप्लेन से ट्रैक किया, इतना बस से किया सपोज और इतना एरोप्लेन से किया। देखते हैं आंसर क्या आता है, कितना डिस्टेंस किससे ट्रैवल किया। ओके, बस ट्रैवल विद एवरेज स्पीड ऑफ, और ये बस का कितना एवरेज स्पीड कितना है, बस ट्रैवल विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, स्पीड है। ओके, ये क्या है, स्पीड है। ये क्या है, डिस्टेंस है। अभी देखते हैं कैसे होता है। तो 60 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन का एवरेज स्पीड कितना है, 700 किलोमीटर पर आवर। एरोप्लेन का एवरेज स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस वी शैल ट्रैवल बाय बस, मतलब ये जितना है ना बस का पूछा है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि इसको लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इज x एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन इज y करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। ओके, इसको सॉल्यूशन। ओके, डिस्टेंस traveled, okay, distance traveled by bus, distance traveled by bus is what, it is x kilometer। okay, और by distance traveled by, यहाँ पे लिख रही हूँ एरोप्लेन, एरोप्लेन से डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको बोल रहे हैं y किलोमीटर पर आवर। और कंडीशन दी है कि टोटल डिस्टेंस कितना है 1900 किलोमीटर। सो यहाँ से मुझे एक कंडीशन मिल जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। ओके, ये किसमें देखो, हम जब क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं तो किलोमीटर 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 होना चाहिए। ओके, दूसरा इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। दूसरा इक्वेशन अगर डिस्टेंस, ये किसका है, किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर। दूसरा हो सकता है टाइम 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 रहेगा। ओके, बट हमारा क्या है, जो एलएचएस में ऐड कर रहे हैं वही आरएचएस में होना चाहिए। ओके, और सेम यहाँ पे भी टाइम, यहाँ पे भी टाइम, ऐसा होना चाहिए। सो ये मेरा फर्स्ट कंडीशन हो गया। दूसरे में क्या दिया है, एवरेज स्पीड दिया है 60 किलोमीटर का और एवरेज स्पीड दिया है एरोप्लेन का। और जो ओके, बस ट्रैवल विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर एंड एरोप्लेन का 700 किलोमीटर दिया है। कुछ तो मिसिंग है एंड जस्ट अ मिनट, it takes 5 hours to complete the journey. Okay, just a minute, I have not written here, they have mentioned it takes 5 hours to complete the journey। okay, to complete the journey it takes 5 hours to complete the journey। मतलब ये स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद बस से और एरोप्लेन से हमें क्या मिल रहा है, 5 hours। 5 क्या है, टाइम है, तो मुझे सब कुछ अभी टाइम में निकालना पड़ेगा। ओके, जो मेरा एंड है वो 5 hours है, 5 hours। ये क्या है, टाइम है। ओके, तो मुझे यहाँ पे भी टाइम चाहिए और यहाँ पे भी टाइम चाहिए। तो यहाँ पे टाइम अभी कैसे आएगा, बस का टाइम, बस ने कितना आवर्स लिया, बस का टाइम, टाइम यानी क्या होता है, वी नो दैट। ओके, हमें क्या पता है, मुझे तो एक ही फॉर्मूला पता है विच इज स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू मुझे पता है क्योंकि इसका यूनिट मुझे पता है जो मैंने रास्ते पे पढ़ा है, किलोमीटर पर आवर। ओके, तो किलोमीटर यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, सो टाइम यानी क्या हो जाएगा, टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट, इट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो अभी मेरा जो बस से ट्रैवल किया वो डिस्टेंस कितना है, दैट इज x। कितना है वो, x है। ओके, दैट इज x। और स्पीड कितना है बस का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, देखो यहाँ पे भी किलोमीटर है, यहाँ पे भी किलोमीटर है। सो इसका यूनिट क्या है, आर है, 5 भी आर है। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, डिस्टेंस एरोप्लेन का और उसका स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर। तो अभी मुझे ये इक्वेशन मिल गया, सेकंड इक्वेशन मिला मुझे, कौन सा, x बाई 60 प्लस y बाई 700 इज इक्वल टू 5। पर मुझे ये 60 और 700 नीचे नहीं चाहिए, तो मुझे क्या है, किससे तो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आई विल नॉट गेट इन दिस फैशन। ओके, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, वो कैसे डिसाइड करते हैं, हम उसका एलसीएम निकाल के फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं। ओके, एलसीएम ऑफ व्हाट, 60 एंड 700। ओके, दिस क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स। ओके, 60 एंड 700। तो पहले सबसे पहले 60 को क्या, मुझे तो आता है 10 इंटू 6 आता है। ओके, एंड देन 700 क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा 100 इंटू 7। ओके, पर ये 6 को मैं क्या लिखूंगी, 100 इंटू 7। पर 100 को मैं फिर से लिख रही हूँ 10 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पे 10 कॉमन है, यहाँ पे 7 लिख रही हूँ। ओके, तो ये 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, अगेन 2 इंटू 3 लिख सकती हूँ। तो फिर मैं ये 10 को भी लिखूंगी 2 इंटू 5 लिखूंगी, राइट ना, 2 इंटू 5। तो अभी एलसीएम मैंने क्या, कॉमन वाले एक ही बार लेना है। सो 10 एक ही टाइम आ जाएगा। सो और 2 एक टाइम आ जाएगा, फिर बाकी के 5 3 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
So LCM will be equal to what? It is 10 into 5, राइट ना, समझ में 10 into 2 लिखा मैंने, फिर बाद में जो रिपीट हो रहे हैं वो एक ही टाइम लिखना है और बाकी के बचे हुए फिर यहाँ पे लिखना है. सो इट विल बी 5 into 3 into 7. तो इसका क्या हो जाएगा? सो 10, दिस इज 10 into 10 what? 100 into 7 3 are 21. 100 into 21 which comes out to be 2100. तो अभी हमें क्या करना है, ये इक्वेशन 2 को 2100 से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय से 2100. वो कैसे करना है? बोथ साइड्स करना है, राइट ना, बोथ साइड से करना है. ओके, सो इट इज 2100 इंटू एक्स बाय 60 प्लस वाई बाय 700 इक्वल टू 5 इंटू 2100. सेपरेटली लिख लिया. ओके, सो अभी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2100 इंटू एक्स बाय 60 यानी 2100 डिवाइड बाय 60 हो जाएगा. ओके, तो ये क्या आ जाएगा? 6 3 राइट ना, 6 3 व्हाट? 18 है लेफ्ट विथ 3, देन 6 5 ओके, सो ये आ जाएगा 35x. और ये तो पता है, ये 7 3 21 होता है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा. सो 7 3 यानी 3y. 35x प्लस 3y इज इक्वल टू व्हाट? 0 0 21 इंटू 5 मुझे आता है विच इज 1500. ये आंसर हो गया. ओके, सो फिर मैं हम इसको नाम देंगे. इट इज विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2. ओके, सो 1 एंड 2 को क्या करेंगे? अभी हम सॉल्व करेंगे 1 एंड 2 को. सो ओके, 1 एंड 2 को देखो. अभी 1 क्या है? 1 1 1 1 वेयर इज 1? सो 1 इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900. और ये अभी लास्ट में जो मिला वो है 35x प्लस 3y. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 3y है, यहाँ पे y है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 3 से, ताकि आई विल गेट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3. सो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके सर, वी विल गेट 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 19 इंटू 3 कितना होता है? 5700, राइट ना. ओके, सो आई विल कॉल दिस एज 3. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे? दिस इज 2 एंड 3 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. आई विल 2 माइनस 3 करते हैं, राइट ना. 2 माइनस 3, अगर 2 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट किया तो व्हाट विल बी? इट इज 35x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है? 10500. देन इसको 3x प्लस 3y है ना, 2 माइनस 3 कर रहे हैं हम, देन इट इज 5700. अभी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सो दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी द माइनस. ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा. सो 35 माइनस 3 इज व्हाट? इट इज 32x इज इक्वल टू क्या होगा? 0 0. 15 माइनस 7 इज व्हाट? इट इज सॉरी 15 माइनस 7 आई विल गेट 8. सो ये हो जाएगा 10 माइनस 6 विल बी 10 minus 6 4. Okay, so what? X will be equal to what? It is 4800 divided by 32. 32 यानी मुझे पता है 16 2s are 32. So यहाँ पे भी 16 3s are 48, right ना. So 300 by 2, so which comes out to be 150. Okay, तो x क्या हुआ? 150 क्या है? x किलोमीटर. ओके, ध्यान में रखो, ओनली x ही फाइंड आउट करना है. नहीं तो हमें क्या आदत होती है कि डायरेक्टली डाल के y भी हम फाइंड आउट कर ले. कुछ नहीं होगा, y भी फाइंड आउट किया तो ओनली इट विल वेस्ट आवर टाइम. ओके, बिकॉज दे हैव आस्क्ड फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल, वी शैल ट्रैवल बाय बस. और बस का हमने किससे डिनोट किया था? x से डिनोट किया था. सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज व्हाट? 150 किलोमीटर. और अगर पूछा होता कि एरोप्लेन से, तो एरोप्लेन से कितना होता? 1900 माइनस 150. ओके, देखो एरोप्लेन का ज्यादा आया. ओके, सो दिस इज from this chapter, application of simultaneous equation. Okay, we have solved all the problems. This practice set 1.5 पूरे हमने सॉल्व किए. तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा वो एक बार हम रिवाइज करते हैं. We have started with the difference between the expression and the equation that we have studied. Then we have solved the linear simultaneous equation. Linear simultaneous equation हमने सॉल्व किया by equating the coefficients और by substitution. Okay, वो सॉल्व किया. फिर हमने ग्राफ पढ़ा. ग्राफ भी हमें आता है कि ग्राफ का जो ये होता है, जो जहाँ पे 2 लाइन्स हमारी क्या हो रही है? 2 लाइन्स हमारी इंटरसेक्ट हो रही है, दैट इज व्हाट? ये क्या होता है? हमारा सॉल्यूशन होता है. ओके, देन हमने बाद में क्या पढ़ा? वी हैव स्टडीड द हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, देन हाउ टू सॉल्व द लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द क्रैमर्स रूल.
ओके। फिर बाद में हमने सीखा कि सम नॉन लीनियर इक्वेशन आर देयर, हाउ टू कन्वर्ट दैट नॉन लीनियर इक्वेशन इनटू लीनियर वन एंड हाउ टू सॉल्व दैट इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम कुछ सब्स्टिट्यूट करके उसको लीनियर बनाते हैं, फिर बाद में उसको सॉल्व करते हैं। तो वो टाइप वो उसमें क्या होते हैं, दो इक्वेशन, 2 बार हमें इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते हैं। ओके, वो हमने सीखा। फिर बाद में हमने एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन सीखा। जो इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको नोट्स के इसमें दूंगी। ओके, और जो भी हम ये इसका हमने ऐप बनाया है, उसका ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो यू कैन परचेज द ऐप फ्रॉम दैट वन। इट इज़ वेरी मिनिमल कॉस्ट।